students, welcome back. We in the previous class started with chapter number 9, biomolecules, wherein we just had a look at the definition of biomolecules, that is the molecules which are present within the living entities, living beings. Then we tell them as biomolecules. Now these molecules could be micro and this could be macro on the basis of the weight that it possesses. When even it could be organic or it could be inorganic. So basically when we talk about organic in terms of biology, so the compounds or say the materials or the substances which can be decomposed are organic. On the contrary, we did study that in terms of biology, when inorganic materials are the ones which cannot be decomposed. Fine. So basically we did studied about also how to analyze the chemical composition in a living tissue. Suppose if you have taken any of the living tissue, either of the plant or of the animal, how are you going to analyze the amount of inorganic and the organic component present within the same? Fine. So we studied about the methods of studying about a single method, I suppose, of studying related to how will you find the amount of inorganic compound, not just the amount but also what kind of compounds are present, and even the method in order to find the organic compounds, which all are the organic compounds present in a given thing. Fine. So we studied both two methods. Today we shall be starting with what actually. So we shall be starting with the molecules. So first of all, the very first molecule that we are going to study is amino acid. And when we talk about this amino acids forms proteins. So I have given the topic over here, proteins, but basically we are going to study everything about amino acids. So when we talk about proteins, तो प्रोटीन क्या होता है? एक बड़ा सा मॉलिक्यूल है जिसे हम मैक्रो मॉलिक्यूल बोलेंगे, वो एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है. फाइन. तो ये जो प्रोटीन होता है वो किससे बना होता है? तो दिस प्रोटीन इज मेड अप ऑफ नथिंग बट द चेन ऑफ अमाइनो एसिड. इट इज मेड अप ऑफ नथिंग बट द चेन ऑफ अमाइनो एसिड्स. फाइन. नाउ सो बेसिकली हम क्या पढ़ेंगे? सबसे पहले हम पढ़ेंगे अमीनो एसिड, फिर हम पढ़ेंगे कि ये अमीनो एसिड जॉइन कैसे होते हैं और फिर कैसे अलग अलग चेन, पॉलीपेप्टाइड जो चेन बनती है, पेप्टाइड चेन, जैसे कि ये एक पेप्टाइड चेन है, ऐसी बहुत सारी पेप्टाइड चेन बन के बनेगा पॉलीपेप्टाइड चेन, फिर उससे बनता है प्रोटीन. तो हमने सिर्फ इधर इंट्रोडक्टरी पार्ट लिया है प्रोटीन का. बेसिकली हम अभी पढ़ने वाले हैं अमीनो एसिड. तो प्रोटीन की जब बात करें तो नियरली एवरी डायनामिक फंक्शन ऑफ द लिविंग बीइंग डिपेंड्स अपॉन प्रोटीन. येस, ऑब्वियसली एनी ऑफ द फंक्शन ऑफ अवर बॉडी इज डिपेंडेंट ऑन प्रोटीन, बिकॉज मेजॉरिटी ऑफ द कंपोनेंट. अपने सेल की भी बात कर लो तो सेल किससे बना है? तो भाई उसकी मेम्ब्रेन के अंदर प्रोटीन लिपिड होता है, तो प्रोटीन से बना है. जितने भी ऑर्गेनल्स हैं उसके अंदर, जैसे कि समझ लो ये माइटोकॉन्ड्रिया है, तो उसकी जो मेम्ब्रेन है वो भी किससे बनी है? तो इट इज़ ऑल्सो मेड अप ऑफ प्रोटीन लिपिड्स. वैसे ही न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की बात कर लो, और बहुत सारे ऐसे कंपोनेंट प्रोटीन वगैरह जो होते हैं तो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट होते रहते हैं और उसकी वजह से हमारे सेल को स्ट्रक्चर मिलता है, बहुत सारे फंक्शन होते हैं हमारे बॉडी के अंदर. फाइन. सो प्रोटीन्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल द लिविंग बीइंग्स. Now, consistent with their diverse function, they vary extensively in structure. So basically what is being told over here, all the proteins have diverse functions. Fine. different functions होते हैं. They vary in their structure. Obviously सबके काम अलग अलग होते हैं. जितने भी प्रोटीन्स होते हैं, कोई प्रोटीन हार्मोन बनते हैं, कोई प्रोटीन एंजाइम बनते हैं. फाइन. तो उसके काम अलग अलग होते हैं. कोई मेम्ब्रेन बनाने में काम करता है, तो उसके जैसे फंक्शन अलग है, उसके स्ट्रक्चर भी बहुत वेरी करता है. फाइन. ईच टाइप ऑफ प्रोटीन हैविंग अ यूनिक 3 डायमेंशनल शेप. सारे ही प्रोटीन का एक यूनिक पर्टिकुलर 3 डायमेंशनल शेप होता है, कंप्लीट डिफरेंट. जैसे कि हम हीमोग्लोबिन की बात करें, एंटीबॉडीज़ की बात करें, तो सारी चीज़ें क्या हैं? वो कुछ अलग अलग टाइप के प्रोटीन्स ही हैं जिनके स्ट्रक्चर और फंक्शन कंप्लीट अलग हैं. फाइन. ऑल प्रोटीन्स आर कंस्ट्रक्टेड फ्रॉम द सेम सेट ऑफ 20 अमाइनो एसिड्स लिंक्ड इन एन अनब्रांच्ड पॉलीमर. सो बेसिकली व्हाट डज दिस स्टेटमेंट वांट्स टू से, जितने भी प्रोटीन्स हैं आर कंस्ट्रक्टेड फ्रॉम द सेम सेट ऑफ 20 अमाइनो एसिड्स. मतलब में बेसिकली अमीनो एसिड्स कितने हैं? 20. सिर्फ 20 अमीनो एसिड्स हैं, पर उसके अलग अलग तरीके से चेन बन के हमें तरह तरह के मिलियंस ऑफ प्रोटीन्स मिलते हैं. फाइन. तो बेसिकली कितने हैं? 20 अमाइनो एसिड्स.
fine, which helps in the construction of proteins and varied range of proteins. Proteins formed by chain, proteins कैसे बनता है, तो it is formed by the chain of the amino acid. जैसे कि chain of amino acid, एक amino acid दूसरा तीसरा चौथा अलग अलग combination में joint होता है. जैसे कि ये एक chain है, समझ लो ऐसा भी हो सकता है ये दूसरी chain है fine amino acid की, तो अब ये दोनों joint हो जाएगी और फिर complete protein बनेगा. तो there are, जैसे कि हम हीमोग्लोबिन की बात करें तो it is a protein which is made up of 4 polypeptide chains. तो ऐसी 4 चेन होती है, वो जॉइंट होती है और फिर जॉइंट होने पे वो एक प्रोटीन बनाती है हीमोग्लोबिन. फिर तो वैसे ही प्रोटीन किससे बनती है, तो इट इज़ मेड बाय द चेन ऑफ अमीनो एसिड्स. तो इसके लिए हमें पहले पढ़ना पड़ेगा अमीनो एसिड, फिर हम पढ़ेंगे प्रोटीन क्या है. फाइन, द बॉन्ड बिटवीन द अमीनो एसिड इज टर्म टू बी एज द पेप्टाइड बॉन्ड. सो द पॉलीमर ऑफ अमीनो एसिड इज टर्म टू बी एज अ पॉलीपेप्टाइड. सो बेसिकली यस, जो इसके अंदर ये दोनों अटैच्ड हुए हैं तो बीच में एक बॉन्डिंग होता है. उस बॉन्ड को, जैसे कि ये दोनों अटैच हुए हैं तो ये एक अमीनो एसिड समझ लो, सॉरी, दिस वन इज़ द वन, दिस वन इज़ द वन, दिस इज़ द अनदर वन. तो ये जो अटैचमेंट करते हैं एक दूसरे से, तो वो कैसे करते हैं, बीच में जो बॉन्ड होता है उस बॉन्ड को कहते हैं पेप्टाइड बॉन्ड. हम वो बॉन्ड भी सीखेंगे बाद में क्या होता है. फाइन, और उसकी जो पूरी पॉलीमर बनती है, जो चेन बनती है, इस टर्म टू बी एज पॉलीपेप्टाइड. इसको क्या बोलेंगे हम, पॉलीपेप्टाइड. बहुत सारे पेप्टाइड बॉन्ड्स है इसीलिए हम बोलेंगे पॉली. पॉली मतलब में बहुत सारे, तो पॉलीपेप्टाइड. तो ऐसी पॉलीपेप्टाइड चेन्स बनती है. अब सबसे पहले हम समझ लेंगे अमीनो एसिड क्या होता है, फिर वापस हम जंप करेंगे प्रोटीन पे. तो एक अमीनो एसिड की हम बात करें उसके स्ट्रक्चर की, तो अमीनो एसिड्स ऑल ऑफ देम शेयर अ कॉमन स्ट्रक्चर. जितने भी अमीनो एसिड हैं सारे के सारे का एक कॉमन स्ट्रक्चर होता है. फाइन, अमीनो एसिड्स आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स. वो कैसे कंपाउंड है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है. आपको ध्यान रखना है ये इनऑर्गेनिक नहीं है, ऑर्गेनिक है. तो अमीनो एसिड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं दैट कंटेन एन अमीनो ग्रुप एज एन एंड एन एसिडिक ग्रुप. उसके पास दो तरह के ग्रुप होते हैं, एक होते हैं अमीनो ग्रुप और दूसरा होता है एसिडिक ग्रुप एज सब्सटीट्यूएंट ऑन द सेम कार्बन, दैट इज द अल्फा कार्बन. सो जैसे कि हम उसका स्ट्रक्चर देखें तो इसकी वजह से उसको हम अल्फ़ा अमीनो एसिड्स भी बोलते हैं. अमीनो एसिड्स को हम अल्फ़ा अमीनो एसिड भी बोलते हैं बिकॉज एक ही कार्बन पे उनका जो अलग अलग ये क्या बोलेंगे अमीनो ग्रुप होता है और एक साइड होता है एसिडिक ग्रुप. जैसे कि एसिडिक ग्रुप क्या है, तो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है. फाइन, तो उसका स्ट्रक्चर जैसे कि हम देखें तो आप इधर से समझ सकते हैं. यस, ये एक कार्बन है, समझ लो. इसको हम अल्फ़ा कार्बन बोलते हैं. क्यों, तो वो हम आगे सीखेंगे. फाइन, बिकॉज अल्फ़ा क्यों बोलते हैं, बिकॉज सब ये असिमेट्रिक कार्बन कहलाता है. कौन सा कार्बन, असिमेट्रिक कार्बन. अल्फ़ा तो जैसे कि पहला कार्बन है जिस पे ही 4 अलग अलग ग्रुप लगे हुए हैं. जैसे कि एक साइड होता है अमीनो ग्रुप दैट इज NH2 ग्रुप, एक साइड होता है एसिडिक ग्रुप. एसिडिक मतलब में कार्बोक्सिलिक ग्रुप दैट इज COOH ग्रुप. फाइन, तो इसको बेसिकली हम कैसे डिनोट कर सकते हैं, C बीच में देख सकते हैं आप ऊपर. हाँ, ये होती है साइड चेन, इधर कोई भी चेन अटैच होती है. यही एक ऐसी चीज़ है जो वेरिएबल होती है, बाकी सारी चीज़ें सेम रहती है. जैसे कि ये है कार्बन, कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, तो होती है 4. तो एक तरफ क्या अटैच है, दैट इज NH2. अमीनो ग्रुप, ये कौन सा ग्रुप है, अमीनो ग्रुप है. फाइन, दूसरी तरफ क्या अटैच है, तो जैसे कि कार्बोक्सिलिक एसिडिक ग्रुप, तो COOH ग्रुप होता है. फाइन, अब एक साइड रह गई है तीसरी वैलेंसी, तो उधर क्या होता है, एक R ग्रुप होता है जो साइड चेन होती है, जो वेरिएबल चेन होती है. सभी अमीनो एसिड में ये चेंज होता है, बाकी सब सेम रहता है. अब और एक बाकी है तो उधर जुड़ जाता है एक हाइड्रोजन. तो ये है एक अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर जिसमें बीच में जो कार्बन होता है वो सारे के सारे अलग अलग ग्रुप से जुड़ा है. तो ये इस कार्बन को हम बोलेंगे असिमेट्रिक कार्बन या फिर अल्फा कार्बन. फाइन, नाउ they are also termed, they have one amino group on one side and they have carboxylic group on the other side with an variable R chain. Fine, carboxylic group क्या होता है, acidic group. फिर thus also they are also termed to be as alpha amino acids. They are also termed to be as alpha amino acids. Now they are substituted methanes. They are what, substituted methanes का मतलब क्या होता है, जैसे कि हम मीथेन की बात करें तो मीथेन क्या होता है समझ लो, तो है CH4 होता है मीथेन. तो C और चारों तरफ होता है हाइड्रोजन, तो उसे बोलेंगे हम मीथेन. उसे हम क्या बोलते हैं, मीथेन. चारों तरफ होता है हाइड्रोजन. अब ये ग्रुप भी हट गया और इधर आ गया अमीनो
ग्रुप, ये ग्रुप भी हट गया और इधर आ गया कार्बोक्सिलिक ग्रुप, ये ग्रुप भी हट गया और इधर आ गया आर ग्रुप और बच गया ये। तो सारी की सारी जगह सब्सटीट्यूट हो रही है मीथेन के अंदर, तो इसीलिए हम अमीनो एसिड को सब्सटीट्यूटेड मीथेन्स भी बोलते हैं। ये ध्यान रखना, इनको हम सब्सटीट्यूटेड मीथेन्स भी बोलते हैं। फाइन, now moving ahead with another one, that is yes, there are 4 substituted group occupying 4 valency position। उनकी जो चारों की चारों वैलेंसी पोजीशन होती हैं वो ऑक्यूपाइड होती है, जैसे कि एक तरफ NH2, एक तरफ COOH, एक तरफ है हाइड्रोजन और दूसरी तरफ है जो साइड चेन, जो वेरिएबल चेन होती है वे, बराबर। अब दिस आर कौन कौन से हैं, एक तरफ है हाइड्रोजन, एक तरफ होता है कार्बोक्सिलिक ग्रुप, एक तरफ होता है अमाइनो ग्रुप एंड अ वेरिएबल ग्रुप विच इज डेजिग्नेटेड एज आर चेन। एक वेरिएबल होता है जो है आर चेन, जो चेंज होता रहता है, वो हर अमीनो एसिड में चेंज होता है, इसीलिए इसकी वजह से ही ये पोजीशन हर में चेंज होती है और इसी वजह से ही तरह तरह के हमारे पास अमीनो एसिड्स हैं। आर ग्रुप इन अमाइनो एसिड कुड बी एन हाइड्रोजन, ये जैसे कि समझ लो एक एग्जाम्पल दे रखा है आपको, समझ लो एक एग्जाम्पल दे रखा है, जैसे कि आर ग्रुप इन अमीनो एसिड कुड बी हाइड्रोजन, वो हाइड्रोजन हो सकता है, तो फिर वो अमीनो एसिड बन जाएगा ग्लाइसिन। अगर वो है मीथाइल ग्रुप तो वो बन जाएगा एलिनाइन। अगर वो है हाइड्रोक्सी ग्रुप तो वो बन जाएगा, हाँ हाइड्रोक्सी मिथाइल ग्रुप है तो वो बन जाएगा सेरीन। तो जैसे कि उसका हम एग्जाम्पल देख सकते हैं, उसका स्ट्रक्चर देख सकते हैं, समझ लो। फाइन, तो अगर जैसे कि हमने देखा एक तरफ बीच में कार्बन है, एक तरफ हाइड्रोजन है, एक तरफ NH2 है, एक तरफ COOH है, तो ये 3 ग्रुप सब में सेम रहते हैं, दैट इज अमीनो ग्रुप, कार्बोक्सिलिक ग्रुप एंड हाइड्रोजन। ये जो R ग्रुप होता है वो चेंज होता रहता है, समझ लो। इसी जगह पे क्या है, हाइड्रोजन, R की जगह पे हाइड्रोजन आ गया तो वो बन जाएगा ग्लाइसिन अमीनो एसिड। अब वैसा ही सेम है, एक तरफ है अमीनो ग्रुप, एक तरफ है कार्बोक्सिलिक ग्रुप, एक तरफ है हाइड्रोजन। अब ये R की जगह पे दूसरा कोई ग्रुप आ गया, जैसे कि हमने क्या पढ़ा, मिथाइल ग्रुप, तो दैट इज CH3, तो मिथाइल ग्रुप है तो वो बन गया एलिनाइन। तो ये एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ये 3 तो आने ही चाहिए। फाइन, वो बन गया एलिनाइन। वैसे ही आप सेम देख सकते हो, दैट इज इफ इट इज बीन सब्सटीट्यूटेड बाय हाइड्रोक्सी मिथाइल, दैट इज मिथाइल क्या होता है, CH3। फाइन, हाइड्रोक्सी मतलब में OH ग्रुप, तो एक हाइड्रोजन हटके क्या बन जाएगा, CH2OH, तो वो इधर आ गया, दैट इज मिथाइल हाइड्रोक्सी मिथाइल, तो हाइड्रोक्सी मिथाइल आ गया तो वो बन गया सेरीन। तो आप बेसिकली इधर क्या देख सकते हो कि सिर्फ आर ही ग्रुप ऐसा है जो चेंज हो रहा है और वो अलग अलग अमाइनो एसिड बनाता रहता है। फाइन, सो दिस इज बेसिक अबाउट द स्ट्रक्चर, और आपको ये एग्जाम्पल याद रखने हैं, ग्लाइसिन, एलिनाइन, सेरीन, वो उनका स्ट्रक्चर। फाइन, बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ द आर ग्रुप देर आर मेनी अमीनो एसिड, मतलब में आर ग्रुप चेंज होगा वैसे वैसे तरह तरह के क्या होंगे, अमीनो एसिड होंगे, बाकी सब सेम रह रहा है। फाइन, बोथ दोज ऑकर्स इन यस देर आर मेनी समझ लो क्या बोलेंगे, अमीनो एसिड, जैसे कि आज तक 200 अमीनो एसिड्स हैं जो डिस्कवर हुए हैं, पर बेसिकली दैट ऑकर्स इन प्रोटीन, जो प्रोटीन बनाने में हेल्प करते हैं वो कितने हैं, सिर्फ 20। तो आपको याद रखना है, वैसे तो बहुत सारे आज तक समझ लो 200 जितने डिस्कवर हुए हैं, बट जो प्रोटीन बनाने में हमारी हेल्प कर रहे हैं वो कितने हैं, सिर्फ 20। फाइन, तो ये उसका स्ट्रक्चर है, उसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं स्ट्रक्चर को, दैट इज CR, एक साइड अमीनो ग्रुप, एक साइड कार्बोक्सिलिक ग्रुप और एक साइड है हाइड्रोजन ग्रुप। तो ये जो चेन R साइड चेन है वो चेंज होती रहती है, वो साइड चेन, और उसकी वजह से अलग अलग अमीनो एसिड बनते हैं। बाकी सारे 3 जो होते हैं वो कॉमन होते हैं सारे अमीनो एसिड में। एट द सेंटर ऑफ द अमीनो एसिड इज एन असिमेट्रिकल कार्बन एटम विच इज ऑल्सो टर्म टू बी एज एन अल्फा कार्बन। ये असिमेट्रिकल है, जैसे कि इसके चारों तरफ अलग अलग ग्रुप हैं, इसीलिए ऐसे कार्बन को हम बोलेंगे असिमेट्रिकल। फाइन, और इसको बोलेंगे अल्फा कार्बन। अमीनो एसिड आर एम्फोटेरिक और बाइपोलर आयंस, yes, or zwitterions, hence in solution they serve as a buffer and help to maintain pH। again very important point, that is एम्फो का मतलब होता है ड्यूअल, तो एम्फोटेरिक नेचर है उसका, उसका मतलब क्या होता है, जैसे जैसे pH में वो जाएगा वैसे अपनी सिचुएशन वो चेंज कर देगा। जैसे कि अमीनो एसिड गया है एसिडिक pH में तो वो क्या बन जाएगा, फाइन, वैसे ही वो गया है समझ लो बेसिक pH में तो वो क्या बन जाएगा, बराबर। तो दैट इज उसका नेचर कैसा है, एम्फोटेरिक।
बाईपोलर आयंस, वो पॉजिटिव आयंस की तरह भी काम कर सकता है और नेगेटिव आयन की तरह भी काम कर सकता है। तो दैट इज़ बाईपोलर आयन है, वो ऐसे काम कर सकता है बाईपोलर आयंस की तरह, या फिर इसी फिनोमिनन को हम बोलेंगे ज्विटर आयंस। फाइन, नाउ बहुत इंपॉर्टेंट है ये आप समझना, दैट एम्फोटेरिक और बाइपोलर। एम्फोटेरिक दैट इज ड्यूअल प्रॉपर्टी है, पॉजिटिव भी हो सकता है नेगेटिव भी हो सकता है, जैसे पीएच में वे जाएगा वैसा वे काम करेगा। और वे न्यूट्रल भी हो सकते हैं, तब उसको हम बोलेंगे ज्विटर आयन। जैसे कि पॉजिटिव नेगेटिव होता है तो वो बाइपोलर आयन उसकी प्रॉपर्टी है, उसकी प्रॉपर्टी क्या है, वो पॉजिटिव भी हो सकते हैं नेगेटिव भी हो सकते हैं। इसकी वजह से अमीनो एसिड को हम एम्फोटेरिक बोलते हैं, साथ ही साथ हम उनके पास बाइपोलर होने की भी प्रॉपर्टी है अकॉर्डिंग टू द पीएच इन विच दे एंटर, एंड दे हैव द प्रॉपर्टी टू रिमेन न्यूट्रल एंड दैट इज टर्म टू बी एज ज्विटर आयंस। बराबर, वो ना तो पॉजिटिव ना ही नेगेटिव, वे न्यूट्रल भी हो सकते हैं एंड दैट इज टर्म टू बी एज, तब वे कहलाते हैं ज्विटर आयंस। फाइन, दो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम दे आर टर्म टू बी एज ज्विटर आयंस। फाइन, yes, now it has ionizable nature ऑफ NH2 and COH ग्रुप। दैट इज़, ये जो NH2 ग्रुप होता है दैट इज़ हमने पढ़ा आगे अमीनो ग्रुप होता है, और दूसरा ग्रुप होता है कार्बोक्सिलिक ग्रुप। फाइन, तो ये दोनों ही जो ग्रुप है अमीनो ग्रुप एंड कार्बोक्सिलिक ग्रुप, ये दोनों आयोनाइजेबल नेचर रखते हैं। वे न्यूट्रल से पॉजिटिव हो सकते हैं या नेगेटिव हो सकते हैं। जैसे कि yes sir, now hence in solution of different pH the structure of amino acid changes। उनके जो structure होते हैं वो change होते रहते हैं according to the, yes, according to what, according to the solution in which they enter, according to the pH in which they are there। Suppose ज्विटर आयन मतलब में उसका चार्ज्ड फॉर्म होता है। चार्ज्ड फॉर्म तो कैसा फॉर्म, जैसे कि हम देख सकते हैं इधर से एक हाइड्रोजन रिलीज हो गया है और इधर एक हाइड्रोजन आ गया है एक्स्ट्रा, NH2 की जगह पे है NH3 और इधर है COO माइनस। तो ये जो है जहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव दोनों प्रॉपर्टी दिखा रहा है बराबर, तो इधर जो है प्रोटॉन्स आर रिड्यूस एंड इधर जो है प्रोटॉन्स आर एडेड। फाइन, तो ये जो है COO माइनस एंड NH3 प्लस दोनों प्रॉपर्टी है पॉजिटिव नेगेटिव की, तो वे बन गया है एक ही आयन, दोनों बाइपोलर आयन है, तो ये है ज्विटर आयन। क्या है ये, ज्विटर आयन की तरह एक्ट कर रहा है, दैट इज चार्जेस आर फॉर्म्ड। अब इसको इंक्रीज्ड पीएच में डालेंगे। इंक्रीज पीएच मतलब में क्या, जैसे कि बेसिक पीएच में, तो क्या हो जाएगा, तो दैट व्हाट इज गोइंग टू हैपन, दैट इज वन हाइड्रोजन इज गोइंग टू लॉस्ट फ्रॉम हियर। इसमें से ये जो हाइड्रोजन है वो रिलीज हो जाएगा और ये क्या बन जाएगा, मतलब में इधर से पॉजिटिव चार्ज निकल गया है बराबर, इधर से जो एक्स्ट्रा वन हाइड्रोजन था वो रिलीज हो गया है। फिर इंक्रीज पीएच में जब हमने इसको डाला, तब कैसे पीएच में, जिसमें जो बेसिक होता है, तो इधर से एक हाइड्रोजन निकल जाएगा और ये बन जाएगा NH2 अगेन, पर इसका वैसा का वैसा ही चार्ज रहेगा COO माइनस। तो ये अब कौन सा आयन बन गया, N आयन बन गया, नेगेटिवली चार्ज। ऑन द कॉन्ट्ररी जब इसको डिक्रीज्ड पीएच में हम डालेंगे, समझ लो ये डिक्रीज पीएच में अमीनो एसिड जाता है, तब क्या होता है कि ये जो है NH3 प्लस वो वैसा का वैसा ही रहेगा, समझ लो। पर ये जो होता है एसिडिक पीएच में, एसिडिक मतलब में हाइड्रोजन कंटेंट ज़्यादा होता है। फाइन, વધારે હોય, જ્યારે એસિડિકમાં હાઇડ્રોજનનો કન્ટેન્ટ કેવું હોય તો વધારે હોય, તો વોટ ઇઝ ગોઈંગ ટુ હેપન ઇન दैट सिचुएशन, दैट इज द वन ओवर हियर COO माइनस विल एक्सेप्ट एन हाइड्रोजन। वो हाइड्रोजन एक्सेप्ट कर लेगा, उसको हाइड्रोजन की ज़रूरत है तो वो हाइड्रोजन एक्सेप्ट कर लेगा, और ये वाला जो है वो ज़्यादा हाइड्रोजन अपने में ऐड नहीं कर पाएगा, ऑब्वियसली नॉट। So at this point of time what is going to happen, as yes, this is going to become a positively charged ion। अब ये positively charged ion बन जाएगा, क्यों, क्योंकि इधर तो कुछ हो ही नहीं रहा, ये इसने एक एक्सेप्ट किया और नॉर्मल फेज में आ गया। अब ये जो पॉजिटिव था वो पॉजिटिव रहता है और तब ये कहलाता है पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन। सो दिस हैज़ द प्रॉपर्टी, उनके पास नेगेटिव होने की भी प्रॉपर्टी है, एनायन बनने की भी और कैटायन बनने की भी प्रॉपर्टी है। इसकी वजह से इनको बोला गया है एम्फोटेरिक और बाइपोलर आयन्स। फाइन, और वे न्यूट्रल फेज में भी होते हैं, जिनको हम बोलते हैं, इस प्रॉपर्टी को हम बोलेंगे ज्विटर आयन्स। Fine, so it is easily understandable, fine, wherein it has both the dual property। Fine, so yes, the next thing,
So basically, you have understood about the amphoteric or the bipolar nature of the ions, and this is very important. We in the coming class shall study more about this proteins, fine, and we shall be completing amino acid, which is a micro element, say, which is a micro organic compound, फाइन. माइक्रो मॉलिक्यूल, जैसे हम अमीनो एसिड की बात करेंगे तो वो माइक्रो मॉलिक्यूल है, पर इस माइक्रो मॉलिक्यूल से बड़ा मॉलिक्यूल बनता है प्रोटीन, जो है मैक्रो मॉलिक्यूल. अब दोनों ही कैसे हैं, ऑर्गेनिक है. तो हम क्या पढ़ रहे हैं, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स पढ़ रहे हैं, और आज हमने क्या पढ़ा, अमीनो एसिड पढ़ा. तो इतनी प्रॉपर्टीज, उसका स्ट्रक्चर वगैरह आपको आना चाहिए. वी इन द कमिंग क्लास शेल स्टडी मोर अबाउट दिस. थैंक यू.